Welcome all. My name is Atisha Bohir, lecturer from Praveen Patil College of Diploma Engineering and Technology. In the last video, we have seen the practical number 14. Now in this video, we will see the practical number 15 of ICT. So the practical number 15 is related with the chapter number 4, that is PowerPoint. So slide presentation using tables and charts. So this is the manual view, slide presentation using tables and charts. Table can be used to organize and analyze the data in a presentation, and the charts are visual elements that represent the data in the form of various types of graphs. Means what? Why we use tables? Table is used to show you the data in the organized format, in the format of rows and columns, right? And charts are used to show you a data in the form of graph. So by using table, charts in the presentation, your presentation will be more attractive, right? The visual method can make the PowerPoint much stronger than the simply describing the data. मतलब simply data describe करने से अच्छा अगर उसको चार्ट और टेबल के यूज से अगर तुम लोग अच्छे से उसको दिखा रहे हो, अगर खुद का डेटा है, अगर तुम्हारा कोई डेटा है और तुम उसको डायग्राम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम शो कर रहे हो, सो इट विल बी मोर गुड, इट विल बी मोर अट्रैक्टिव, राइट? रादर देन सिंपली डिस्क्राइबिंग अ डेटा, you use charts, tables in your presentation, so it will be more attractive the audience also, कि वो अच्छा दिखेगा और explain करने में भी easy रहेगा. So this practical is useful to develop a skill to create and manipulate table in the slide and represent the data in the various forms of charts and graphs and manage its presentation. Now the next is minimum theoretical background. So one of the major reasons of using PowerPoint presentation is to convey a message to the audience via static data. This leads to clarify message to the user and increases the readability and understandability of the user. One shall make appropriate use of charts, tables and graphs to fulfill the need. मतलब क्या? One of the major reason PowerPoint use करने का क्या है? हम लोग PowerPoint क्यों यूज़ करते हैं कि PowerPoint से तुम लोग सामने वाले को अच्छे से प्रेजेंट कर सको. That's why in PowerPoint there are different presentation techniques are available, like transitions, then एनिमेशंस. ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो हम लोग PowerPoint में यूज़ करते हैं, जिससे तुम लोग अपना जो डेटा है वो सामने वाले को अच्छे से डिस्क्राइब कर सको. सो PowerPoint हेल्प्स यू फॉर मेकिंग योर प्रेजेंटेशन मोर पावरफुल, सो दैट इट विल ईजिली अंडरस्टैंड टू द यूज़र, राइट? वो अच्छे से यूज़र को सामने वाले समझ में आना चाहिए. ऐसा हम लोगों को प्रेजेंटेशन बनाना पड़ेगा. सो PowerPoint gives you the resources like transition, animation, table, charts. So with the help of that, you can make your presentation more powerful and more attractive. So this is the procedure how to add tables and charts in your diagram, in your presentation. Okay, this is the procedure how to add table and chart in your presentation. So you read this procedure. I will explain you how to add table and charts. Now the next is practical related questions. So what is the difference between normal view and slide sorter view? So what is the difference between normal view and slide sorter view? So the normal view is the typical view used for creating and viewing presentation slide. नॉर्मल व्यू से क्या करते हैं हम लोग? प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स को देखते हैं. बट स्लाइड सॉर्टर व्यू इन PowerPoint लेट्स यू व्यू एंड सॉर्ट द प्रेजेंटेशन स्लाइड्स. स्लाइड सॉर्टर एज इट्स नेम सजेस्ट. सॉर्टर मतलब क्या? अगर हम लोगों को अपने स्लाइड को अच्छे से सॉर्ट करना है तो हम लोग स्लाइड सॉर्टर व्यू यूज़ करते हैं. दिस व्यू इज ऑल्सो नोन एज द थंबनेल व्यू. सो वी विल सी what is normal view and what is slide sorter view. Now you can see this presentation. This is the normal view. Here you can see the slide in the left hand side, slide area. So like this is the normal view, right? But if you want a slide sorter view, then go to the slide show, go to the view, and then here slide sorter is available. Click on the slide sorter and here you can see the slide sorter view. So this is the slide sorter view. Here you can move your slides like this. So you can move your slide from
for that you need to drag your mouse and just drag it to the where you want to move your slide. Okay, so this is the slide sorter view. Here you can see like this you can move your slide. Okay, so if you want to move your slide, then use the slide sorter view. So like this is the difference between normal view and slide sorter view. So here again go to the normal view. For going back to the normal view, go to the view, and here normal option is available. Go to the normal. So we have dragged our slide with the help of slide sorter view. Okay, so for that our 8th slide is going back. Now here next question is, what is the significance of banded rows and banded columns of a table? सो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को पहले टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द बैंडेड रोज एंड बैंडेड कॉलम्स. सो अभी टेबल क्रिएट करते हैं पावर पॉइंट. इसके लिए दूसरा पावर पॉइंट यूज़ करेंगे. हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू क्रिएट अ टेबल. सो गो टू द इंसर्ट, go to the table. Now we will take another slide. Just right click, new slide. So this is the new slide. Here we will insert a table. So if you want 3 rows and 3 columns like this, you will enter. Now this is the normal table. Okay, go to the insert and create a table. So here if you want banded rows means what? Here banded rows and banded column option is available. Banded rows means what? जो तुम लोगों को बैंडेड रोज मतलब क्या, वो हाईलाइटेड में दिखेगा. जैसे ब्लू कलर अभी हाईलाइट में दिख रहा है. अगर बैंडेड कॉलम्स पे क्लिक करोगे तो कॉलम्स भी हाईलाइट हो जाएंगे. सो दिस इज़ द बैंडेड रोज. बैंडेड रोज को अगर हम लोग डिसेलेक्ट कर देंगे तो वो हाईलाइट नहीं दिखेगा. ऊपर वाला फर्स्ट वाला रो मत देखो, सेकेंड एंड थर्ड वाला रो देखो. इसको थोड़ा इंक्रीज करते हैं सो दैट वी कैन सी प्रॉपरली. थोड़ा इंक्रीज करेंगे सो दैट यू कैन सी प्रॉपरली. सो लाइक दिस. नाउ हियर यू कैन सी बैंडेड रोज कहाँ पे रहेगा? जहाँ से तुम लोग टेबल को क्रिएट करोगे. अगर टेबल पे क्लिक करोगे तो सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी अगेन क्रिएट अ टेबल. गो टू द इंसर्ट, गो टू द टेबल and here select the option. Okay, now here in the table design and layout, in design part banded rows is available. So click on this banded rows and banded columns. If you deselect banded rows, then rows का कलर देखो यहाँ पे चेंज हो गया. वापस इसका साइज इंक्रीज करती है. अभी बैंडेड कॉलम्स पे अगर क्लिक करूँगी तो देखो यहाँ पे कॉलम्स का कलर चेंज हो गया. सो यहाँ से तुम लोग वो कलर्स भी चेंज कर सकते हो. देखो सो लाइक दिस यू कैन चेंज द कलर. अगर बैंडेड रोज एंड बॉन्डेड कॉलम्स नहीं चाहिए तो ये वाइट पूरा हो जाएगा. नीचे के 2 रो देखो, ऊपर वाला ग्रीन कलर का रो मत देखो. बैंडेड रोज देखो वापस, ये देखो कलर इसका चेंज हो गया. बैंडेड कॉलम्स ये भी कलर चेंज हो गया. सो लाइक दिस आर द बैंडेड रोज एंड बैंडेड कॉलम, मतलब कलर उसका चेंज हो जाता है. देखो दिस आर द डिफरेंट स्टाइल्स. टेबल पे क्लिक करोगे डिज़ाइन बैंडेड रोज तो बैंडेड रोज हो जाएंगे. सो दिस कलर चेंज होता है, वही है बैंडेड रोज का. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज exercise related questions. So here our first question is prepare a slide show and add chart showing a gender specific population of your class. तो अभी क्या करना है, ऐसा स्लाइड शो क्रिएट करना है जहाँ पे हम लोग चार्ट को ऐड करेंगे. और चार्ट को ऐड करने के बाद चार्ट में क्या दिखाएगा? वो जेंडर स्पेसिफिक पॉपुलेशन ऑफ योर क्लास. सो अभी टेबल को हम लोगों ने ऐड किया, वैसे हम लोग चार्ट को ऐड करेंगे. तो नए वाले प्रेजेंटेशन में यहाँ पे न्यू स्लाइड एंड चार्ट को ऐड करेंगे. तो चार्ट को ऐड करने के लिए गो टू द इंसर्ट, यहाँ पे चार्ट है, चार्ट पे क्लिक करो.
अभी चार्ट बहुत सारे टाइप के हैं, कौन से टाइप का चार्ट चाहिए वो सिलेक्ट करना है। लाइन है, पाई चार्ट है, तो हम लोग कॉलम वाला लेते हैं, ये वाला लेंगे, प्रेस ओके। जब हम लोग चार्ट को ऐड करेंगे तो उसके साथ में एक एक्सेल शीट ओपन हो जाएगा, उसके साथ में एक एक्सेल शीट ओपन हो जाएगा जहाँ पे हम लोग चार्ट का वैल्यूज चेंज कर सकते हैं या फिर वैल्यूज को हटा भी सकते हैं। वैल्यूज को हम हटा भी सकते हैं। अभी यहाँ पे देखो सीरीज़ 1 और सीरीज़ 2 हो गया। अभी जेंडर स्पेसिफिक पॉपुलेशन दिखाना है तो यहाँ पे मेल लिखो, यहाँ पे फीमेल, एंड देन क्लास के नाम लिखो, जैसे CO है, सिविल, मैकेनिकल, नाउ हियर यहाँ पे हम लोगों ने जब यहाँ पे चेंज किया तो यहाँ पे चेंज हो रहा है CO, सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, राइट। अभी यहाँ पे जो वैल्यूज़ है वो पहले से इन्होंने दिए हुए हैं, हम लोगों को यहाँ पे वैल्यू चेंज करने, तो वो एक्सेल शीट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। तुम लोगों को सिर्फ वैल्यूज़ देने, जैसे CO में मेल है 50%, फीमेल है 50, तो देखो अकॉर्डिंग टू द चार्ट वहाँ पे चेंज हो जाएगा। देखो 50-50 तो सेम आया। कलर यहाँ पे दिया हुआ है, मेल के लिए ब्लू कलर, फीमेल के लिए ऑरेंज कलर। तो सिविल में भी हम लोग करते हैं ऐसा 60-40, तो अकॉर्डिंग टू दैट चार्ट विल बी चेंज। मैकेनिकल में 90-10, सी इलेक्ट्रिकल 70-60, सो लाइक दैट द वैल्यूज विल बी चेंज हियर। तो वैल्यूज यहाँ पे उसके साथ में साइमल्टेनियसली चेंज हो जाएंगे, CO, सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। सो दो चारों के वैल्यूज क्या हो गए, चेंज हो गए। सो लाइक दिस इज द जेंडर स्पेसिफिक चार्ट। चार्ट का टाइटल वी कैन चेंज, यहाँ पे चार्ट का टाइटल चेंज कर सकते हैं, जेंडर चार्ट। सो ऐसे हम लोग चार्ट का नाम भी चेंज कर सकते हैं। सो लाइक दिस यू कैन डू चार्ट्स इन द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। नाउ ये फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। अगर अच्छे से नहीं समझोगे तो वापस एक बार वीडियो देखो रिज्यूम करके। Now the next is create a chart in slideshow depicting your earlier semester marks। अब एक चार्ट को क्रिएट करना है जहाँ पे क्या दिखेगा, आपके सेमेस्टर के मार्क्स दिखेंगे और बार चार्ट क्रिएट करना है। तो बार चार्ट मतलब क्या, जो अभी हम लोगों ने यूज़ किया वो बार चार्ट ही था, ये है, ये जो है ये बार चार्ट ही है। ओके, सो यहाँ से हम लोग चार्ट का डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं। देखो यहाँ से डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किया था चार्ट का, वैसा ही है यहाँ पे। बस यहाँ पे जब तुम लोग चार्ट क्रिएट करते हो तो चेंज हो जाता है। देखो डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू स्लाइड, बार चार्ट बनाने बोला है, इंसर्ट। अभी जो हम लोगों ने ऐड किया वो बार चार्ट ही था, तो यहाँ से यही बार चार्ट ही है, ये वाले बार चार्ट ही हैं। तो बार चार्ट क्रिएट करो। क्वेश्चन क्या है, क्रिएट अ बार चार्ट और तुम्हारे सेमेस्टर के मार्क्स दिखा दो, वही है। तो यहाँ पे पाई चार्ट भी है, बहुत सारे ऐसे ऐड कर सकते हैं हम लोग, सेमेस्टर के मार्क्स दिखाने के लिए भी ऐड कर सकते हैं। सो लाइक दिस वी कैन मेक अ चार्ट इन द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो ये वो जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है, क्रिएट अ चार्ट इन स्लाइड शो डिपिक्टिंग योर अर्लियर सेमेस्टर मार्क्स इन बार चार्ट, ये तुम लोग करके ट्राई करके देखो ये क्वेश्चन। ओके, सेमेस्टर के मार्क्स दिखा दो। तो जहाँ पे हम लोगों ने मेल और फीमेल लिखा वहाँ पे क्या रहेगा, सब्जेक्ट के नेम रहेंगे, और साइड में सेमेस्टर के, मतलब सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2। जहाँ पे हम लोगों ने मेल और फीमेल लिखा वहाँ पे सब्जेक्ट के नाम डाल दो, और जहाँ पे हम लोगों ने वो लिखा था वहाँ पे तुम लोग क्या लिखोगे, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 ऐसा लिख दो। ओके, सो फ्रॉम दिस आवर प्रैक्टिकल नंबर 15 is completed. Our practical number 15 is completed. In the next video, we will see the practical number 16, which is also related with the Microsoft PowerPoint. Thank you.